Good evening, everyone. I guess we are not many of the people over here, but still we can just unmute ourselves and say wish good evening. Okay, I'm just unmuting you all. Yeah, good evening, everyone. Hello, ma'am. Good evening. Very good evening, Sumedha ma'am. Very good evening. Good evening, Shalsa ji. Good evening, Chotika ma'am. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? I'm good. I'm good. Good to see you here. Good evening, Vikas sir. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. So, ready? Ready for the Gmail training? That's great. Thank you. Thank you so much, all of you, for being with us today. I really welcome all of you in our AIF platform. This is state webinar, as all of you know, Hindi state webinar. आज का webinar हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में करने की. It's a little difficult, but still I will try my level best so that we can communicate little with a little more ease and we can share our problems and all. Right. Thank you so much for being there once again. So let's begin today's journey. I'm just going to share my screen. And once I share it, I really want to all of you just let me know. Just give me a minute. Yeah. Is it visible? My screen is visible. I hope it's visible. Yeah. Sumedha ma'am? Yes, ma'am. Right. Thank you so much. Okay, just have a look on all these 20 things and let me know how many things all of you know out of this so that we can work accordingly. Send me in chat box, just send me the number. If anything you know out of this, send me the number. Like first number, second number, or 15th number, or 18th number. Just send me those numbers which you feel like that, yes, you know these numbers out of this. You can send me message in chat box. Any of the number which you feel like. If nothing, even then you can just send me thumbs up that yes, we need to start it up. Come on, dear audience. I'm waiting. All right. Sumedha ma'am is saying, okay, 1, 3, 5, prioritizing view of important mails. Okay. 5th, archiving mails, snoozing mails, blocking mails, forwarding mails. All right. Sumedha ma'am, this forwarding mails is not that simple one, which we forward the mail. It's not that forwarding mail. This is Okay, ma'am. So might be I'm mistaken somewhere. That's okay. That's okay. That's great that you know archiving and snoozing. That's also one of the important part of it. Anyways, That's why we are here actually. Yes. So let's begin it. So my dear Yes. audience, we are going to learn all these things. And in fact, I will try to make you learn more than this, whatever we can. I would really appreciate if all of you will be switching on your camera so that we can interact more and we can have a better conversation. I don't mind, you know, you are driving or somewhere else, or maybe not dressed up properly. Even then, we are just at a learning scale. So that's okay if you just switch on your video and then we can have this webinar. And besides this, not only just learning about this thing, I really want all of you to do the things simultaneously practically. Like if you are like you're using laptop, अगर आप laptop use करें, तो please it's my request आप साथ के साथ जो भी मैं आपको आज यहाँ पे बता रही हूँ, आप साथ के साथ करके देखिए so that you come to know that how we go about it. I hope I'm clear. Okay, so let's move ahead. I'm just going to share with you my Gmail account. So this is our sort of Gmail account, right? हम अपना inbox check करते हैं.
अपना अपना इनबॉक्स चेक करिए और मुझे बताइए आपके इनबॉक्स में, जैसे इस टाइम मेरे इनबॉक्स में यू कैन सी देयर आर 7,598 मेल्स। आपके इनबॉक्स में इस टाइम कितनी मेल्स पड़ी हैं? जस्ट लेट मी नो, लेट्स चेक। चैट बॉक्स में जस्ट सेंड मी, check your email box. अगर आपको randomly याद है, you can randomly send the number that in your inbox, how many mails are there exactly? Because this is one of the parts जिससे हम बहुत ज्यादा irritate होते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, जब हमारा मेल बॉक्स बहुत ज्यादा भर जाता है तो व्हाट डू वी डू, हम न्यू मेल आईडी बना लेते हैं। ऐसे ही करते हैं आई गेस। विद हम डू वी डू दिस? टीचर्स और एनी ऑफ द प्रोफेशनल, हम लोग जनरली ऐसा करते हैं, हमें लगता है वो अब इसमें पॉपअप आना शुरू हो गया कि अब इसमें ज्यादा मेल्स और नहीं इन हो सकती, या हमारे मैसेज आगे कन्वे नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं, हम न्यू ईमेल आईडी बना लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। या जितना डिलीट कर सकते हैं उतना करते हैं, बट स्टिल एवरी आफ्टर 2 days दैट पॉपअप डज नॉट गो, नहीं होता। Right, ma'am. Yes. Right. Vikas is saying, Vikas said 99 plus. That's it. Just 99 plus. That's great. Then to you are gem that you are maintaining your Gmail box in such a wonderful way. Okay, Jyotika ma'am is saying 1900 plus. यानी कि इस टाइम मैंने ही अपना सबसे ज्यादा filled box inbox दिखाया है। चलिए, anyways, I was having one purpose behind to show you all this. Okay. Let's begin the thing which I wanted to convey it with you. First of all, the very simple part, जिनका इनबॉक्स बहुत ज्यादा फिल्ड हो जाता है, हम क्या करते हैं, we select the mail and we delete it. I'll very first thing, जो कि बहुत सिंपल सा मेथड है, I'll tell you how to go about it. जैसे suppose I don't need this Myntra, right? मुझे ये मिंत्रा से जितनी भी मेल्स आती है मुझे बहुत समझो डिस्टर्ब करती हैं, it's like unnecessary thing. Now there are two ways to stop getting these mails. Number one is you open that mail and click on this three dots, right? And filter messages like this. You will see this pop-up, and very soon under this pop-up, without doing anything, आप देखेंगे सारी मेरी मिंत्रा वाली ही मेल्स ओपन हो गई हैं। You check जितनी मेल्स मेरी मिंत्रा की आई हैं, there are like more than 50, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये वाला बॉक्स है, I have to just tick over there, और यहाँ से मैंने उसको डायरेक्ट डिलीट कर दिया। सो इट्स वन वे टू गो अबाउट इट। ये देखिए जितनी भी मेल्स हैं, just collectively I'll be just doing it. So it's a little cut short. Again little bit I'm telling you guys, this is suppose Facebook है, मुझे ये Facebook का नहीं चाहिए जितनी भी मेल्स है, so I'm filtering messages like this. जब मैं ये करूंगी तो इसके नीचे सारे फिल्टर मैसेज उसी मैसेज के आ जाएंगे, एंड आई हैव टू सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर, और सिंपल यहाँ पे जाके मैं उसको डिलीट कर दूंगा। दिस इज वन वे। अब डिलीट तो मैसेज हमने कर दिया, बट द प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्टिंग। मेरे पास अभी भी मिंत्रा से मैसेज आते रहेंगे, फेसबुक से मैसेज आते रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट वी कैन डू इज, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज मेरे पास ये timejobs.com है, तो व्हाट वी कैन डू, same way we'll open that mail, and what we'll be doing, we'll be just going at the end of it. One second. Okay, we'll be just going at the end. आप यहाँ पे हर मेल के जो भी आपकी ऐसी प्रमोशंस वाली मेल होती है, हर मेल के एंड में आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा आइकॉन होगा अनसब्सक्राइब का। Click on that, unsubscribe. It will take you to another window to ask कि आप अनसब्सक्राइब क्यों करना चाहते हैं, और समथिंग या कुछ और वो आपसे पूछना चाहेगा, राइट? सो यू डोंट गो फॉर इट। अगर आपको नहीं करना तो इट्स ओके, डोंट गो फॉर इट, और जस्ट सिंपल गिव रीजन कि हाँ मुझे अनसब्सक्राइब इस रीजन से करना है, नहीं तो इट्स ओके, जस्ट लीव इट। मुझे इसको अनसब्सक्राइब करना है तो मैंने कर दिया, आई जस्ट नीड टू क्रॉस इट, और वो ऑलरेडी अनसब्सक्राइब्ड मेरे मेल बॉक्स में हो जाएंगे। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। सो दीज आर द टू वेज टू गेट रिड ऑफ unwanted mails, the first step which we have learned, ताकि हमारा कम से कम जो इनबॉक्स है वो कट शॉर्ट होता जाए। Now let's learn the depth of it. अब आप जो मेरा मेल बॉक्स देख रहे हैं, हम पहुंचेंगे कहाँ पे, we'll reach there. This second mailbox is sort of this way. You'll see that how different it is.
from other. Okay, yeah, can you see this? So this is my managed, sort of managed. यहाँ पे अभी storage full दिखा रहा है क्योंकि ये मेरा old inbox है, मैंने इसमें deletion नहीं डाला. But managed means I have divided it into two things. I have made a lot of labelings wherein I can find important mails. We'll learn all these process. Let's see how. We'll start from here. This toggle box, can you see? ये gearbox कहते हैं इसे, sorry. This is gearbox. This gearbox पे, when we'll be getting it click, we'll click on all settings. यहाँ से हम start करेंगे to learn all this stuff. Simultaneously, I really want all of you to keep on doing it practically. साथ के साथ अगर आप अपना inbox खोलेंगे, open करेंगे, तो simultaneously you will be doing some settings. जो भी settings मैं आपको करवा रही हूँ इस like practical session में, there will not be any harm to your mails. Remember it. आपकी मेल को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. It's going to be beneficial for you. So please, simultaneously, you can surely go ahead with all those settings which we are going to do. जबकि हम इसका setting box hardly we open. So we are going to learn about this. यहाँ पे can you see this Gmail display language English? अब इसका सबसे बड़ा benefit क्या है? Suppose I am Hindi teacher and I want that my all the languages, like all the mails, I should get in Hindi. यहाँ से मैं अगर अपना language ही कर देती हूँ, यहाँ से अगर मैं अपना language हिंदी कर देती हूँ और मैं inbox में जाती हूँ, okay, I need to, okay, एक बात और we need to remember, हम जो भी changes करेंगे अपने इस setting box में, at the bottom every time we'll have to save all those changes. या यहाँ पे तब वो सारे changes होंगे. ओके अब मैं अगर अपने इनबॉक्स में जब मैं जाती हूँ और अपनी कोई भी मेल ओपन करती हूँ एंड आई रियली वांट दैट इट शुड बी इन हिंदी, तो इट विल कम इन हिंदी एज वेल. जैसे सपोज मुझे यही मेल है, ओके तो ये मेल मुझे अपनी हिंदी में चाहिए. आई विल बी जस्ट क्लिकिंग ऑन हियर. यहाँ पे तो मेरा पूरा फिल्टर ही वो उसमें आ गया, राइट. यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश में भी लिखा होगा कि ट्रांसलेट दिस मैसेज. So I am translating this message. ये देखिए, my whole mail, it is in Hindi, right? It has translated in Hindi. अब इसके लिए आपको वहां पे भी लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं. ये तो मैंने आपको बताया, अगर आपको अपना पूरा मेल बॉक्स ही हिंदी में चाहिए, राइट, और पंजाबी में चाहिए, तब आप बेसिक लैंग्वेज, जैसे ये मुझे दिखा रहा था, जैसे ये ऊपर छोटी छोटी चीजें भी लिखी है कि भाषा का पता लगाएं और समथिंग लाइक दैट, राइट. इनबॉक्स भी हिंदी में लिखा हुआ है. अगर आपको पूरा का पूरा सेटअप ही अपना हिंदी या पंजाबी या गुजराती किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में चाहिए, तो आप मेन सेटिंग बॉक्स में यू कैन चेंज द लैंग्वेज एंड देन यू कैन, अगर आपको सिर्फ अपना कोई पर्टिकुलर मेल हिंदी या किसी और लैंग्वेज में देखना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके लेट मी जस्ट गो अहेड वंस अगेन टू शो यू हाउ इट गोस. आई विल बी जस्ट गोइंग हियर and I am just simply taking it into English. अगर मैं इसको normal English में भी रखती हूँ तो, right, I just need to make save changes, and after that when I go in inbox, and I click on any of the mail, same 3 dots, यहाँ पे मुझे ये मैसेज ट्रांसलेट करना है, राइट, ट्रांसलेट करना है मुझे हिंदी में. I am to just one second. It's a little stuck. Okay. Oh, all right. So here, so translation is here. यहाँ से मुझे वो language choose करनी है कि किस language में करना है.
right? Suppose Malayalam mein. If I'm just changing it, it will come in that language. I hope this much is clear, right? Let's go again back to our main box. See all settings. Now this is language changing. तो यहाँ से आप अपना language change कर सकते हैं mail box का. Then next changes. Maximum page size. हम generally देखते हैं, आप अपनी inbox में देखिए, मैं बार-बार inbox में नहीं जा रही हूँ because it takes a little time. You check yourself. आपके inbox में maximum page जो ऊपर show करता है वो कितना है? 1 to 50 और 1 to 100. तो हमारे पास यहाँ पे एक लिमिट रहती है कि हम अपना मैक्सिमम पेज, एक पेज पे कितनी मेल्स दिखाएं, तो उसको हम मैक्सिमम तक रख सकते हैं so that it shows us maximum of the mails. So 100 conversation it will show. So second setting you can do this. Undo send. इस पे आप surely 101% click करिए 30 seconds. Now how we go about it? I'll let you know this practically. Let's first of all do the settings of this general page. How we go about it? अगर हम कोई भी मेल सेंड करते हैं, right? Whenever we send any of the mail, तो आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मैसेज सेंड का एक ऑप्शन आता है. I hope I'm right. Please just keep on showing me thumbs up if you're getting my point. जब हम कोई भी मेल सेंड करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक मैसेज सेंड का ऑप्शन आता है. अगर हम यहाँ से undo send 30 सेकेंड्स कर देंगे तो हमारे पास 30 सेकेंड्स होंगे उस मेल को रोकने के लिए. समटाइम्स होता है कि ओहो मैं अटैचमेंट तो लगाना भूल ही गया या भूल ही गई, राइट? सो वी कैन अनडू फ्रॉम देयर बिकॉज वी हैव 30 सेकेंड. नॉर्मली हमारे जीमेल में हमें 5 सेकेंड्स दिए होते हैं, तो यहाँ पे आप फॉर 101% श्योर आप 30 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, राइट? देन नेक्स्ट इज डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर. Okay, यहाँ पे you can just click reply or reply all. There are two options. Now what is this? I'll just show you a little bit. मैं अपनी दूसरी मेल अगर ओपन करती हूँ तो if I just go on compose, can you see this? ये नीचे thanks for connecting लिखा हुआ है. Thanks for connecting. It means ये मेरा ऑटो मैसेज यहाँ पे फीडेड है. ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ऑटो मैसेज फीडेड कहाँ से हो जाता है. तो दिस इज लाइक कि रिप्लाई टू ऑल, कि जब भी ये मैं ऑटो मैसेज डालना है तो ये हर मैसेज के साथ जाए. सपोज आपने सिंपल लिखना है कि रिगार्ड्स सुमेधा, रिगार्ड्स विकास और रिगार्ड्स शैलजा, आपने बॉटम में ये अपनी हर मेल के साथ भेजना है, तो आपको हर बार टाइप करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट वंस ओनली डू इट. विल लर्न दैट टू कि हम वो चीज कहाँ पे एडिट करके रखते हैं. बट उसके लिए आप यहाँ पे डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर में रिप्लाई और रिप्लाई ऑल, दीज टू ऑप्शंस विल बी क्लिकिंग. बेटर टू गो फॉर रिप्लाई ऑल. नहीं तो रिप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको हर मेल करते टाइम वो एक बार पूछेगा कि क्या आप ये बॉटम वाला मैसेज साथ में भेजना चाहते हैं कि नहीं. तो इट्स बेटर आप श्योर हो कि आप भेजना चाहते हो तो आप रिप्लाई ऑल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हॉवर एक्शन. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इट. Enable hover actions over here for 101% sure. Now what is this all about? अगर आप inbox देखेंगे, अब मुझे इसमें भी again I'll have to save the settings. I'll just save the settings here and then I'll take you कि hover actions क्या हैं. मैंने hover actions enable किया and when I'll be just getting again my inbox, what I'll be seeing that at right hand side पे मेरे पास various of options. ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास आर्काइव की ऑप्शन भी यहाँ आ रही है, डिलीट की ऑप्शन भी यहाँ आ रही है, सम मार्क एज अनरेड की ऑप्शन भी आ रही है और ये स्नूजिंग की. ये दिस इज हॉवरिंग एक्शन जो आपको आपके मेल के साथ ही मिल जाता है. दिस इज हॉवरिंग एक्शन. अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तभी आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगी, नहीं तो हर बार आपको ऊपर जाके कहीं डिलीट करना पड़ेगा या आर्काइव की सेपरेट ऑप्शन से आपको डिलीट करना पड़ेगा एंड सो ऑन. So hover action, you can certainly go ahead to enable it. This is hovering actions. Next, we go about, again, we'll go in our gearbox. After hovering actions is, okay, images, यहाँ पे मैं आपको prefer करूँगी, आप ये click करके रखिए. Always display external images और ask before displaying external images. That means कि आपके पास कोई भी मेल बॉक्स में आपके पास कोई भी इमेजेस आती हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि वो सारी की सारी इमेजेस आपको विजिबल हो. कई बार क्या होता है अगर हम उसको डाउनलोड करते हैं तो ही वो विजिबल होती है,
नहीं, अदरवाइज नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑलवेज डिस्प्ले एक्सटर्नल इमेजेस करके रखेंगे तो वो आपको हमेशा विजिबल होंगी, राइट। डायनेमिक मेल थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इट्स लाइक लिटिल मोर टेक्निकल, आई विल नॉट लेट यू नो दैट पार्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट स्टिल विल ट्राई टू टच दिस एट एंड इफ पॉसिबल। उसके बाद थोड़ा सा और स्मूथ करते हैं अपने ग्रामर को। यहाँ अपनी मेल बॉक्स को ग्रामर सजेशन ऑन, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ग्रामर सजेशन ऑन, spelling suggestion on, and autocorrect option on, right? Smart compose on. Please keep on noting it down or simultaneously do these settings. Later on, maybe you forget. Autocorrect on, smart compose on. Then after that, smart compose personalization. This also you can get it on. Now, what does it affect? जैसे आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा, जब भी हम कोई मेल लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो कुछ स्पेलिंग्स का करेक्शन हमें ऑटोमेटिकली हमें दिख जाता है, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे भी पता चल जाता है। अगर हमने ये ऑप्शंस, ये स्मार्ट कंपोजिंग की ऑप्शंस है, ये हमने इनेबल करके रखी हुई है, तो हमारे लिए और इजी हो जाता है। इट टेल्स अस कि हमारा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं जा रहा, ग्रामर सजेशन हमारे पास आ जाती है, स्पेलिंग सजेशन आ जाती है, ऑटो करेक्शन ऑल्सो इट शोज, एंड देन राइटिंग सजेशन ऑल्सो। लाइक सपोज एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहती हूँ, ओके, आई एम अटैचिंग द अटैचमेंट, तो वो बिलो वर्ड, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो हमने अभी टाइप करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको एक ब्लिंक में दिखने लग जाएगा, राइट। मतलब वो छोटा सा आपको डिस्प्ले अपने आप होने लग जाएगा और आपको जस्ट एंटर करना है, तो वो आपका फुल फ्लेज मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज लाइक स्मार्ट कंपोजिंग, कि ऑटोमेटिकली आपका मैसेज आपको दिख रहा है, राइट। देन आफ्टर दिस, if we just go a little more down, conversation view. Now what is this conversation view? अगर हम इस conversation view को on करके रखते हैं, it sets whether emails of the same topic are grouped together or not. That means हमारे पास ये actually generally इस चीज के लिए, अगर हम इसमें जो हमारे Gmail box में Hangout अगर हम use करते हैं, like few of the people they use Hangout, तो उनके लिए कॉन्वर्सेशन का एक व्यू होता है जो साइड पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब नो रिसेंट चैट्स हैं अभी फिलहाल आ रहा, तो अगर वो इनेबल करके रखते हैं और हमारी चैट्स कुछ अगर यहाँ पे होती हैं, तो वो हमारा कॉन्वर्सेशन व्यू ऑन रहता है वहां पे हैंगआउट्स में, राइट। तो उसको आप ऑन करके रखें, ऑफ करके रखें, यहाँ से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नजेस। नाउ अगेन दिस इज वेरी स्मार्ट फीचर, ट्रस्ट मी, अगर आप इसमें ये चीज ऑन कर करते, suggest emails to reply to, suggest emails to follow up on, both options please enable it. How it will help you, please understand. जब हम इनबॉक्स, हम कोई भी इनबॉक्स देखते हैं, मैंने ये ऑप्शन दोनों ऑन करके रखती हैं। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इस पे ही लिखा हुआ है, whatever emails that you might have forgotten to respond, it will appear at the top of your inbox. That means हमारे पास कोई मेल आई, ठीक है, हमने उस मेल को एक्चुअली कंप्यूटर अपने आप, जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, हम किस मेल को बार बार रिप्लाई करते हैं। सपोज मेरे स्कूल की मेल्स हैं, तो वो जब बार बार आती है, अगर मैंने ये सुजेस्ट ईमेल्स टू रिप्लाई टू ऑन करके रखा है, तो जब तक मैं उस पर कोई उसको रेड मैसेज नहीं करूंगी, तो वो तब तक मेरे टॉपअप पे ही मुझे दिखती रहेंगी, राइट। सो दैट इट्स रिमाइंडिंग मी कि अभी मुझे इसको रिप्लाई करना है कि नहीं करना है। या फिर ऑपोजिट टू इट, आप कोई प्रोफेशनल हो, आपने मान लो अपने वेबिनार के लिए कुछ मेल्स सेंड करी हैं, राइट, एंड देन सेंट ईमेल्स दैट यू माइट नीड टू फॉलो अप ऑन विल अपीयर एट द टॉप ऑफ योर इनबॉक्स। आपको उन मेल्स से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, दैट पार्टिसिपेंट इज पार्टिसिपेटिंग और नॉट, तो वो वाली मेल्स भी टॉप पे रहेंगी, आपके इनबॉक्स के टॉप पे रहेंगी, जब तक वहां से कोई आपको मैसेज नहीं आता और आपको वो रिमाइंडर होगा कि आपने अभी इन मेल्स का फॉलो अप लेना है। हम जनरली ये सेटिंग नहीं करते हैं, बट दिस इज वेरी बेनिफिशियल। अगर आप ये करके रखते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, देयर इज नो हार्म इन इट, राइट। इट्स जस्ट हेल्पिंग यू आउट टू नो दिस, कि आपके जो मेल बॉक्स में जितनी मेल्स हैं जो आपने अभी एक्सेस करनी है या जो आप चाहे उनको रिस्पॉन्ड करना है, वो आपके टॉप बॉक्स में आपको विजिबल हो। So this enable is for that purpose, right? Next is smart reply on.
Again, I told you that smart reply, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, thanks for responding and all, we will tell that how we go about it. Smart features and personalization, इसको भी आप on कर सकते हैं. This is for Meet, generally Meet, like जो हम G Meet use करते हैं, उसमें features हमारे सारे enable हो जाते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है drag these stars. अब stars का benefit क्या है? I'll just take you back once again. उससे पहले थोड़ा सा ये नीचे एक और चीज देखते हैं, सिग्नेचर्स. सिग्नेचर्स में अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला पूजा, राइट, दिस इज माय सिग्नेचर. जैसे मैं आपको कह रही थी रिगार्ड्स हम लिख रहे हैं, राइट, इसको मेरे को क्रिएट कर देना. फाइन, आई हैव क्रिएटेड दिस इज माय सिग्नेचर व्हिच आई रियली वांट माय ऑल द मेल्स शुड बी देयर. यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आती है, इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर द कोटेड टेक्स्ट इन रिप्लाईज एंड रिमूव द डैश डैश लाइन दैट प्रीसीड्स इट. अब आपको ये जो वर्ड है आपका सिग्नेचर आपको टॉप पे चाहिए जब आप कोई मेल भेज रहे हैं तब, राइट, या आपको नॉर्मली चाहिए. अब मैंने यहाँ पे अभी इनबॉक्स सॉरी यहाँ पे जो इसका बॉक्स है इस पे मैंने इनेबल नहीं करा, मैंने जस्ट सिंपली इसको सिग्नेचर डाल दिया, राइट. फॉर न्यू मेल यूजेज मुझे चाहिए ये कि मैंने जो भी न्यू मेल्स भेजनी है वहां पे भी मुझे अपना ये सिग्नेचर चाहिए, और जो मुझे रिप्लाई करना है या फॉरवर्ड करना है वहां पे भी मुझे अपना ये सिग्नेचर चाहिए. सो आई हैव रिटन ओवर हियर. नाउ यू विल सी when I am saving these changes and I'm just going back to do some composing. Okay. When I'm just going back to do some composing, you'll see here there is a sign of signature, insert signature at the bottom. इसका जो नीचे वाला composing के नीचे ये सारी options हैं, इनको हम कई बार देखते भी नहीं है. इस bottom पे insert signature की option है, right? अब यहाँ पे है कि क्या signatures. So I'll just do manage signatures, right? A manage signature what? Okay. So this I am okay. उसने अभी उठाया नहीं. All right. Let me see why it was not being picked up. Okay. Create. Just need to save it again. I did that. All right, let's just go ahead this way. After saving it, let's see how it goes. So this is saving. And if I get it composed, then I again click on this. I mean, it's not showing. I guess there is some issue here. I'm not getting. Anyways, you just try it with you. It will definitely happen. जैसे मैं आपको अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ये जो मेरा दूसरा इनबॉक्स है मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके रखा हुआ है ये सिग्नेचर, which is showing you whenever we are composing some mail and whenever we are sending it, it automatically it picks up. Now, for example, I'll show you here. Compose. Suppose ये मेरा दूसरा इनबॉक्स है, राइट. ओके, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, वहां पे इस टाइम दूसरी मेल में आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, राइट. आई जस्ट शो यू अगेन. ये सिग्नेचर मैं जब ओपन करूंगी तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा कि ये वाले सिग्नेचर्स हैं मेरे. तो आई जस्ट हैव टू क्लिक हियर, राइट, पूजा घई. तो जब भी ये अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये दिस इज थैंक्स फॉर कनेक्टिंग इज डिफरेंट मैसेज व्हिच वी आर टू पुट अप. जब भी मैं ये मैसेज कहीं किसी को फॉरवर्ड करूंगी तो इट विल शो टू दैट पर्सन कि पूजा घई हैज sent this message and like it's her signature, right? So we can surely go about that. यहाँ पे आप certainly अपने signatures insert करके रख सकते हैं, which shows that it's you who is sending. All right. इससे थोड़ा सा और bottom पे जाते हैं. After this, all right, this out of office auto reply, यहाँ पे आइए. आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई इसको हम यूज नहीं करते हैं, जबकि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है. अब कैसे यूजफुल है,
जून जुलाई की छुट्टियां आ रही हैं एंड वी फील लाइक कि बहुत सारी ऐसी मेल्स होंगी जो हमें आ रही होंगी और हम छुट्टियों में हैं, हिल स्टेशन घूमने गए हुए हैं और हम उनको ऑटो रिप्लाई नहीं कर पा रहे, राइट? व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहाँ पे सेटिंग करके जाना है, दैट्स इट। आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई ऑन, राइट? सपोज मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल जून से, 2 से, आई नीड टू राइट डाउन माई फर्स्ट डे और लास्ट डे भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ, राइट? माई मैसेज, आई कैन पुट अप एनी मैसेज, thanks for connecting, right? We'll get back to you. Any message I can just simply type and I can keep it here, right? And it's saying only send a response to people in my contacts. That means ये हर एक को नहीं भेजेगा। मेरे कांटेक्ट में कौन लोग हैं जिनको मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई भेजती हूँ या ज्यादा मेरे को उनके मैसेज आते हैं, जैसे स्कूल से आते हैं हमारे, या ऑफिस से आते हैं, राइट? जिनको हम कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करके रखते हैं, तो उनको ये मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। If my this out of office auto reply is on with this first day, here I can just simply write down in subject out of station, right? So that person come to know कि yes I am out of station, so this mail is that regard. तो इसको अगर आप सेव चेंजेस करके रखते हैं तो आपका ये ऑटो रिप्लाई ऑन है, और बिकॉज अभी हम जून जुलाई में नहीं है तो इट विल नॉट टेक इट अप, राइट? ये ऑटो रिप्लाई वैसे का वैसे ही जाएगा। जब आप इनबॉक्स अपना कुछ भी आपको कोई मेल आ रही है उसको ऑटो रिप्लाई जाएगा कि यू आर नॉट प्रेजेंट ओवर हियर एंड यू विल कनेक्ट आफ्टर हॉलीडेज, राइट? ओके, लेट्स गो हेड नेक्स्ट। सो दिस जर्नल इज क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट एनीबॉडी? किसी को कुछ इसमें कोई क्वेरी है, कुछ कोई दोबारा पूछना चाहता है तो श्योरली कैन अनम्यूट एंड आस्क और वी मूव फर्दर। यू कैन सी दीज थिंग्स। हमने यहाँ पे एक और चीज देखनी थी शायद, वी वर सेंडिंग या स्टार्स, हमने स्टार्स चेक करने थे कि स्टार्स कैसे कह रही थी मैं। इनबॉक्स में जाएंगे वंस अगेन, व्हेन वी बी गोइंग टू इनबॉक्स, जो भी मैसेज, मान लो ये वाला मैसेज है, मुझे ये मैसेज बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई रियली वांट कि मेरे पास ये जितने ऑनलाइन एसबीआई कार्ड के मैसेज हैं, राइट, ये मैसेज मेरे, मैं इनको स्टार करके रखता हूँ। मैंने इनको रेड स्टार कर दिया, राइट? देखिए मान लो मैंने इनको रेड स्टार करके रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास, आपने नोटिस किया होगा ये इनबॉक्स, इस साइड पे हमारे पास ये स्टार्ट की ऑप्शन होती है। व्हेन आई विल बी क्लिकिंग ऑन स्टार्ट ऑप्शन, राइट, it will show me my all star messages only, right? जितने मेरे स्टार किए हुए मैसेज होंगे सिर्फ वो हमारे फिल्टर हो जाएंगे। So this is also one of the technique to filter your message, right? Normal technique है। इसके अलावा there is one more very beautiful way which we can go ahead, which I am going to make you learn, जो शायद many of you would be there who would not be knowing this, and please must tell me all of you जितनों को ये चीज नहीं पता। Let's go to inbox। हम सेम गियर बॉक्स में गए अपने सेटिंग्स में, and there you will be going to inbox setting। Here the very first part is inbox type। inbox की टाइप क्या है, हमें क्या चाहिए? हमारे पास डिफॉल्ट में आती है ये टाइप, जबकि if we go for this multiple inboxes it will surely help us in a beautiful way। Now how? I'll show you cut short। मैंने यहाँ पे कर रखा है अपनी दूसरी मेल में। I'll tell you how it goes up। So my this another mail is there। I'll open this setting box over here। Now when I am opening this inbox, यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में मैंने लिखा है JSHS, my school name, my LinkedIn और any me means जो मैं खुद को मेल्स भेजती हूँ, sometimes we do that, right? तो 3 चीजों को मैंने इनबॉक्स करके रखा है, राइट? नाउ हाउ इट वर्क्स, इसके बाद इसको सेव करना है। सेव करके व्हेन यू गो इन इनबॉक्स, आप दोबारा इनबॉक्स में जाते हैं, व्हेन यू गो देयर you will see here at this side only, this column, right, your left hand side only, you will see there would be these marks,
इंग्लिश लिंक्डइन मी, ये आपके लेबलिंग हो रखी है। अगर मुझे ये इंग्लिश वाली मेल्स चाहिए, राइट, माय ऑल इंग्लिश मेल्स, जितनी मेरी इंग्लिश की मेल्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी मेरे पास, राइट। एंड दिस इज लिंक्डइन, इफ आई विल जस्ट ओपन इट, तो जितने मेरे पास वन सेकेंड, ये इसमें मार्क नहीं हुई, सिंपल वे, ये जितनी मेरे पास मी की मेल्स हैं वो सारी मेरे पास मी की मेल्स आ जाएंगी। सो इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। प्लीज मेक योर इनबॉक्स डबल, राइट, यू कैन श्योरली गो अहेड। अब इनबॉक्स डबल, उससे क्या होता है, आपका ये वाला इनबॉक्स शो होता है। ओके, अगर आप नॉर्मली देखते हैं, ये देखिए, जब आप इसको डबल कर देंगे तो आप देख सकते हो ये दो साइड पे है इनबॉक्स मेरा, एक इधर है एक इधर है। यहाँ से ये JSHS की मेल खुल रही है, यहाँ से ये लिंक्डइन की खुल रही है, यहाँ से ये मी की खुल जाएंगी, राइट। सो दिस वे यू कैन डिवाइड योर मेल बॉक्स। ऐसा नहीं है कि जो आपकी मेल्स आपके सेकंड वाले मेल बॉक्स में है वो आपको फर्स्ट में शो नहीं होंगी। जब आपके पास कोई न्यू मेल आती है तो आपके फर्स्ट वाले बॉक्स में ऑटोमेटिकली वो मेल आपको शो होगी, बट वो फिल्टर होके आपके सेकंड वाले इनबॉक्स में भी चली जाएगी। So this is not going to harm you, but it will beautify your box. You know, आपको 100 मेल्स यहाँ पे दिख रही है, 100 मेल्स इधर हैं, राइट, और उससे उसका कितना सारा डिवीजन, ये देखिए मैंने ये खोली तो मेरे को इतना सारा डिवीजन इधर भी दिख गया, राइट। इट इज मोर बाइफर्केटिंग, राइट। एक ही पेज पे मुझे कितनी सारी मेल्स, मुझे बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं करना पड़ रहा, मैंने 2 इनबॉक्सेस बना लिए हैं, which is really the beauty of it. So this is इनबॉक्स टाइप इट हियर, मल्टीपल इनबॉक्सेस, और मल्टीपल इनबॉक्सेस में आप क्या करना चाहते हैं। अब इसमें हमने सिंपली, अब एक और चीज अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे तो आपने टाइप कर दिया कि ये है मेरे पास लिंक्डइन, ये है, बट वो जाएगा कैसे, हाउ इट विल गो अबाउट, उसका भी एक सिंपल वे है। मैक्सिमम पेज साइज इट शोज 9 कॉन्वर्सेशन पर पेज। मल्टीपल इनबॉक्स में कितने सेक्शंस आपके हो सकते हैं, तो वो 9 सेक्शंस हो सकते हैं, राइट। मेरे 3 थे, वो 9 सेक्शंस हो सकते हैं। आपको उस जो डबल वाला इनबॉक्स है उसकी पोजीशन कहाँ पे चाहिए, राइट हैंड साइड पे चाहिए, अबव ऑफ द इनबॉक्स चाहिए, बिलो चाहिए, किस साइड पे चाहिए, वो भी आप पे डिपेंड करता है। मैं प्रेफर करती हूँ राइट हैंड साइड पे, बिकॉज जब वो अप और बिलो होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो लेट इट बी राइट ऑफ द इनबॉक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इफ वी गो इट, हाँ, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आती है रीडिंग पेन। रीडिंग पेन आपको अवेलेबल नहीं होता अगर आपका मल्टीपल बॉक्स ओपन हुआ होता। अब रीडिंग पेन क्या है, मान लो मैं इसको मल्टीपल बॉक्स को नहीं करती और डिफॉल्ट में कर देती, राइट। रीडिंग पेन क्या है कि मेरे इनबॉक्स में कोई भी जो भी मेल है मेरी, राइट, अगर मैं उसको क्लिक करती हूँ, राइट, तो इट जस्ट डायरेक्टली इट शोज मी देयर, वहां पे रेड आउट हो जाता है, राइट। दिस इज जस्ट डिफरेंट, बट इट इज नॉट गोना टू बेनिफिट अस मच। तो हमें इसीलिए इनबॉक्स में मल्टीपल इनबॉक्स करने का कोई नुकसान नहीं, इट विल बेनिफिट अस, राइट। नॉर्मली लोग, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, प्रायोरिटाइज मेल कर लेते हैं, बट दैट वे ऑल्सो इट विल नॉट हेल्प यू दैट मच जितना ये आपको मल्टीपल इनबॉक्सेस करके, यानी कि जब आप डबल इनबॉक्सेस करते हैं वहां पे वो आपको टैग करता है। अब आपको ये करना कैसे, सपोज मुझे ये चाहिए, मान लो JSHS, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, JSHS कर दिया, I have written here, right, and after that I am saving changes. After doing these changes, okay, see, अभी मैंने वो ये किया हुआ है JSHS का, right, तो यहाँ से मेरी जितनी JSHS की मेल है वो ऑलरेडी फिल्टर हो गई। Are you getting my point? This is already getting filtered over here, right? So this is the benefit of it. Okay, let's go next. इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन में, लेट्स गो फॉर लेबल्स। लेबल इज अगेन वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ जीमेल जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं।
which is actually very wonderful part. मैं आपको अपनी labeling दूसरी मेल में जो setting हुई है, I would love to show you this, that how it looks. We will open this setting and labeling, and when we are done with that, see here, create labels. Again, अब यहाँ पे मैंने labels create करे हुए हैं, right? वही same English, LinkedIn और me, जो मैंने inboxes दोबारा बनाए. अब मैंने जैसे आपको कहा कि वो ऑटोमेटिकली कैसे आएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली तब आएगी जब हमने उसको लेबलिंग भी कर रखा है, फिर वो ऑटोमेटिकली जब न्यू मेल आएगी तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी. यहां से हमने करना है क्रिएट न्यू लेबल. व्हेन आई एम क्रिएटिंग न्यू लेबल, सपोज आई एम क्रिएटिंग मेरे इनबॉक्स में मान लो चलो फेसबुक, राइट, सपोज फेसबुक का लेबलिंग मैं कर रही हूँ, एक क्रिएट कर दिया. Right, this is Facebook creating. I'll go again in my inbox. Right, अब मेरे ये दो वाले inboxes हैं. Right, these two inboxes are there. अब मेरे पास Facebook का लेबल मैंने कर रखा है. I'll just simply type Facebook वाली कोई भी mail, just one mail. I'll just simply type. Let's see if there is any, if something comes up. चलो अभी नहीं आई. मान लो मेरी ये जोमेटो वाली है. लेट्स सी, वैसे तो होनी चाहिए कोई तो. चलो एनीवेज, if it is not there, still suppose this Zomato mail is my Facebook mail. I just need to click open this. Again same way, मान लो ये मेरी Facebook की मेल है, मैंने Facebook की मेल को फिल्टर कर लिया, all such mails. ठीक है, हम इसका लेबल चेंज कर देंगे बाद में, विल मेक इट Zomato वाला लेबल, राइट. ये जितनी है ये सारी जोमेटो वाली हैं. इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट, इसका लेबल मैंने डाल दिया कि ये मेरे पास, ये देखिए इस लेबल पे यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी मेरे पास ये लेबल ओपन हो जाएगा. मैं इसको डालना चाहती हूँ यहाँ पे फेसबुक में, और यहीं से चलो मैं न्यू क्रिएट कर देती हूँ. दिस इज जोमेटो, राइट, एक जोमेटो की न्यू लेबलिंग है, तो आई एम क्रिएटिंग इट. फाइन, यू कुड सी यहाँ पे हर जगह जोमेटो जोमेटो लिखा गया, right, everywhere it is Zomato. That means this labeling is done for this mail. When I'll just open it, it's already written. अब मुझे ये visible नहीं हो रहा है, right, it's like this, color नहीं उसका पता चल रहा है. तो हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला जो बॉक्स है, we'll just open it again. उसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मुझे लेबल दिख रहे हैं अपने सारे. 3 डॉट्स पे we'll click और इसका लेबल कलर I can change it. I want it blue, right? See, now it's visible. Wheresoever my Zomato mail is there, it will show me blue color. ये देखिए नीचे आया. Fine, I'll go more down. Zomato again, it's a blue color. Wheresoever it will be there, so that label will automatically will happen. So this way we go around labeling. Any doubt till here? किसी को कुछ यहाँ पे कोई स्टेप कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज लेट मी नो, otherwise we'll move forward. Thank you so much for showing your thumbs up, Sunila ma'am. Thank you so much. I could see some messages in chat box. Vikas sir is saying, can you please repeat how to increase time from 10 seconds to 30 seconds to undo send email? Of course yes sir. वो हमने जनरल सेटिंग में किया था. जनरल सेटिंग में यहाँ पे undo send 30 seconds, राइट. अब मैं ये आपको करके भी दिखाती हूँ. मैंने 30 सेकेंड्स का रख दिया, सेव कर दिया. मैं कोई भी मेल कंपोज कर रही हूँ, राइट. नॉर्मली कुछ भी नहीं सेंड करना. अगर मुझे इसी को मान लो इतना सही मुझे सेंड करना है तो आई जस्ट सिंपली डू व्हाट, इसको मैं सेंड कर रही हूँ, ओके, स्पेसिफाई, ओके, ऑलराइट, सॉरी, टू whom I just go for this, okay, to myself only. I want to send it here, right. Send. ये देखिए यहाँ पे मेरे पास सेंडिंग की ऑप्शन आ रही. फटाफट अनडू, हमारे पास 30 सेकेंड्स है इसको अनडू करने के लिए. वी कैन डू इट दिस वे, राइट. तो within 30 seconds it will get undo, but 30 seconds only. Remember that needs not to be forgotten. हमारे पास नॉर्मली 5 सेकेंड्स होते हैं, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि गो फॉर 30 सेकेंड्स फॉर दिस, राइट. सो वी आर डन विद जनरल सेटिंग्स. उसके बाद हमने इनबॉक्स में सेटिंग्स देखी कि हम मल्टीपल इनबॉक्स कैसे बना सकते हैं, राइट. उस मल्टीपल इनबॉक्स में हमने कॉन्वर्सेशन मैक्सिमम पर पेज कितना रखना है,
उस इनबॉक्स को हमने राइट हैंड साइड पे कैसे रखना है, और उसके बाद हमने लेबलिंग अपनी सारी मेल्स की, हाउ वी कैन गो फॉर दैट वी आल्सो वी हैव सीन दैट एज मेनी लेबल्स यू वांट टू गो फॉर। यहाँ से आप क्रिएट लेबल करते जाए, क्रिएट न्यू लेबल, और उसको आप शो करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, शो इफ अनरीड करना चाहते हैं, दैट इज ऑल योर ऑप्शन। बट अगर हमने लेबल्स बनाई हैं तो इसीलिए मैंने सब पे शो ऑप्शन कर रखा है, हाइड नहीं कर, हाइड करूंगी तो शो वाला ब्लू हो जाएगा, राइट। सो आई एम showing this. So this is about labeling, right? Next, again, very important feature. This feature I am 101% sure आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता हो। अगर किसी को पता हो तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि yes पता था, अगर नहीं पता होगा तो भी बताइएगा कि yes this is something new. Now what is it? I'll show you in my that box जो हम जिस पे हम वर्क कर रहे थे. See this, when I open this account and import, अब होता क्या है, मेरे मान लो 3-4 अकाउंट्स हैं, राइट, 3-4 मेल आईडीज हैं। अगर सुमेधा मैम मैं आपसे पूछूं कि आपको एक मेल बॉक्स आपकी एक आईडी से भेजना है, ठीक है, अब आपको याद आया कि नहीं मेरे ये आईडी तो मुझे यूज नहीं करनी, मुझे दूसरी आईडी यूज करनी, तो आप क्या करते हैं? मैम स्विच करते हैं अकाउंट को। स्विच करते हैं, सभी यही करते हैं, राइट? Yes. Everybody switch on to other account. But today I'm gonna to tell you that how just being into one mail account only you can send your mails, you can forward your mails from your only other mail account. ठीक है, मैं एक बार फिर क्लियर कर रही हूँ। आपकी मान लो ये मेरी ये वाली आईडी है पूजा JSH, सॉरी दिस इज पूजा वाला, राइट? सो दिस इज पूजा JSH। एक मेल की आईडी को आप, मेरी एक मेल आईडी है पूजा JSH, एक है पूजा JSHS, राइट? तो इन दोनों आईडीज को मैं एक में ही कैसे सेट कर सकती हूँ? यहाँ अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में आपके पास ऑप्शन होती है सेंड मेल एज, एड अनदर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप एड अनदर ईमेल एड्रेस करिए। मुझे यहाँ पे ऐड करना है अपना ये वाला मेल एड्रेस, मान लो पूजा JSHS, मेरे पास ये वाली मेल है, राइट? ये मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, राइट? अब पूजा JSHS पे ये वेरिफिकेशन भेजेगा। अब मेरी वो मेल खुली नहीं हुई है तो मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ यहाँ पे, आई जस्ट ओपन दिस पूजा JSHS, राइट? वहां पे ये वेरिफिकेशन भेजेगा कि भाई दिस मेल वांट्स कि आपको दूसरी मेल से भी मैसेज आ जाए, राइट? कि आपकी दूसरी मेल यूज हो जाए, तो दैट वेरिफिकेशन वी हैव टू टेक अप। तो मुझे उसके लिए अपना ये वाला मेल बॉक्स खोलना पड़ेगा। दिस इज माय दैट मेल बॉक्स जो मैंने मेल आईडी फिल करी है। इफ आई जस्ट ओपन माय इनबॉक्स हियर, ओके, राइट? सी हियर, यहाँ पे मुझे जीमेल से एक जीमेल कंफर्मेशन मेल आ गई है that you have requested to add this to your mail account, your confirmation code is this। तो मुझे ये कंफर्मेशन कोड यहाँ से कॉपी करना है। इट्स जस्ट वन टाइम प्रोसेस, ये सिर्फ एक ही बार करना है सेटिंग करने के लिए, राइट? कंफर्मेशन कोड मुझे वहां से वो ऐड करना है, यहाँ से मुझे वेरीफाई करना है, और यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दिया एंड आई एम वेरीफाइंग इट। वंस इट इज वेरीफाइड तो मेरी यहाँ पे पूजा JSH 2012, यहाँ पे मेरा ये मेल बॉक्स ऐड हो गया। अब अगर मैं कंपोज मेल करती हूँ तो, राइट, कंपोज मेल में ये मेरे पास ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए कि आप कहाँ से भेजना चाहते हैं, अपनी इस मेल आईडी से या इस मेल आईडी से, राइट? तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपनी इस मेल आईडी से भेजना चाहती हूँ, राइट? सो एंड और किसको भेजना चाहते हैं, वट एवर दैट इज, आपका मेल एड्रेस है यहाँ पे एंड यू कैन सेंड योर, right? I hope this is something new for you. Must send me a message in chat box जिनके लिए ये new है, so that we feel like a little interacting. जिनके लिए ये चीज new है, must send me a message. Vikas sir has sent me a message. Thank you, sir. Useful feature. Okay. Who else? Yes, Sumedha ma'am. Okay, just write. Maybe you write one word that it's new. That's it. That will work. Okay, Preeti ma'am is saying new for me. Great. All right. Thank you so much. Thank you so much. So I hope this will work. Thank you, Archana ma'am. Thank you.
फाइन. सो ये हमने सीखा कि हमारा मेल आईडी हम कैसे मल्टीपल. सुमेधा मैम, मैं इस चीज की बात कर रही थी, फॉरवर्डिंग मैसेज दिस वे. जब आपने कहा कि फॉरवर्ड मैसेज आता है, सो दिस इज द वे विच आई वाज टेलिंग कि फॉरवर्ड मैसेज कैसे कर सकते हैं. राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आपके पास ये भी ऑप्शन है, चेक ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स. अब हमने दूसरे मेल से तो हमने मेल भेज दी, लेकिन हमें ये नहीं पता उस मेल में चल क्या रहा है, उसके इनबॉक्सेस में क्या कुछ चल रहा है. राइट. यहाँ पे वो भी ऑप्शन है हमारे पास, एड एन ईमेल अकाउंट. अगेन सेम वे वी आर टू गेट इट डन. मेरे पास ये वाली मेल है, सपोज मैं चाह रही हूँ कि इस मेल बॉक्स में मुझे करना है. अगेन सेम वे, नेक्स्ट स्टेप, इट वुड इंपोर्ट ईमेल्स. अब देखिए यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट ईमेल्स फ्रॉम माय अदर अकाउंट. अब इसमें होगा क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, आपका इसी मेल का मेल बॉक्स थोड़ा ज्यादा भर जाएगा कि आपकी वो इंपोर्ट होती रहेंगी इसी ईमेल बॉक्स में. ठीक है, वो इसको थोड़ा फिल कर देंगी. बट अगर कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं कि इट्स ओके, मुझे एक ही जगह अपनी सारी मेल, मैं अब अपनी वो दूसरा मेल आईडी यूज नहीं करना चाहता, जो भी मेल उस पे आए वो अपने आप इस पे इंपोर्ट होता जाए. राइट. तो दैट इज अनदर ऑप्शन. मैं अभी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वेरीफाई नहीं करूंगी. बट जैसे हमने पिछला वेरिफिकेशन किया, द सेम वे यू आर टू गो फॉर दैट प्रोसेस. तो आपका कोई मेल आईडी जो आपको अभी नहीं यूज करना, यू कैन गो अहेड दैट वे. राइट. एंड दिस वे your other email account is visible over here. Next Excuse is, me, ma'am. yes Sumedha ma'am. Sorry to interrupt. I just want to ask you, अगर हम ये दोनों को combine कर देते हैं तो will it not fill the inbox of other mail? हाँ, the same I am saying. Other mail means जो मान लो मैं अगर इसको combine कर देती हूँ तो मेरी इस मेल में वो अपने आप import होती रहेंगी. ठीक है, और ऑफ कोर्स इनबॉक्स भरता भी रहेगा. ठीक है, बट मेरे को एक कन्वीनियंट हो जाएगा ना, मुझे बार बार वो नहीं खोलना है. ठीक है, या मैं उसको यूज ही नहीं करती हूँ, बट उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट मेल्स हैं. अब इस पे आप आगे आगे फॉरवर्ड जाएंगे, स्टेप नेक्स्ट जाएंगे, तो वो आपको ये भी पूछेगा कि आप कुछ पर्टिकुलर मेल्स भेजना चाहते हैं, राइट, इंपोर्ट करना चाहते हैं, या ऑल मैसेजेस इंपोर्ट करना चाहते हैं. राइट. तो वो वेरिफिकेशन के साथ आपको वो भी पूछेगा. राइट. एंड देन यू कैन गो अहेड दैट वे. Okay, and can it combine other also, like this we are talking about Gmail? Yes. If suppose we have mail IDs on Yahoo or Rediff, so that also can be done? No, it's in Gmail. It's in Gmail. Okay. Right? Thank you. Thank you. Then next is, ये हमने कर दिया चेक ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स. अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है, ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट. सपोज मैं चाहती हूँ सुमेधा मैम को अपना ये मेल अकाउंट एक्सेस करना. जैसे हमारे बैंक्स में इकट्ठे अकाउंट होते हैं हस्बैंड वाइफ के, राइट. और इस फेस मान लो कपल चाहता है कि हाँ, या बच्चों की मेल चाहते हैं कि हाँ भाई, बड़ी बेटी है, छोटे बच्चे बेटे की मेल बनी हुई है, तो वो तो खोल के ऊपर नहीं करता है, चेक नहीं करता है कि उसके स्कूल से क्या मेल्स आ रही हैं. तो चलो बड़ी बेटी को बोल दिया कि ग्रांट एक्सेस टू द अकाउंट, तो उसको एक्सेस यहाँ से आप दे सकते हैं. यहाँ पे आपको सिर्फ उसका अकाउंट ऐड करने की जरूरत है. Any account you can access with the verification, of course. Same way, verification will happen. So here we go for three things. Number one, we can send our mails from multiple email IDs. Fine. Number two, we can check our mails of multiple email IDs. Number three, we can grant access to our other IDs from one email. That way also, हम किसी और को अपना access दे सकते हैं. Right. So this was about this. Okay. Now moving forward. Anybody wants to ask anything? Okay. Moving forward to filters and blocked addresses. यहाँ पे हमारा filter और blocked addresses होते हैं. हमने कुछ blocking करनी है किसी मेल बॉक्स किसी चीज की, तो हम यहाँ से block और filter उसको कर सकते हैं. How to go about it? मैंने यहाँ पे कुछ करके नहीं रखा, import filters नहीं करके रखे हैं. Okay, you currently have no blocked address. Select. I want to select all. Okay, let me choose some file for it. If I just show you the same feature, because मैं इसमें कुछ blocking डालना नहीं चाहती हूँ, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो I'll just show you that way around. Same way, we'll be seeing all addresses here. जैसे मैंने यहाँ पे अपना कुछ block कर रखा है. ये देखिए, ये मेरे कुछ इनकमिंग मेल्स हैं, राइट. द फॉलोइंग फिल्टर्स आर अप्लाइड टू ऑल इन
all emails. One second. Right. Okay. यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाता है which email address are blocked, messages from these address will appear in spam. मान लो इन्हीं में से मेरे पास मुझे कोई भी है, ये मेरी वो वाली मेल है जो ज्यादातर मुझे आती है, राइट, या जिनको मैं रिप्लाई नहीं करती, जैसे ये है अपडेट, इसको मैं चाहती हूँ इस मेल बॉक्स को आई जस्ट वांट सिंपली टू गेट इट डन. एक्सपोर्ट, राइट, तो ये मेल मेरे पास हमारे डाउनलोड हो गई और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ, राइट. एंड द सेम वे इफ आई एम टू जस्ट ब्लॉक इट, मेरे पास कुछ ब्लॉकिंग में है नहीं, अदरवाइज यहाँ पे आपको ऑप्शंस ऐसे ही दिखेगी कि आप कोई मेल अगर आपका पर्टिकुलर मेल ब्लॉक करना चाहते हैं यू कैन गो अहेड दैट वे टू. आपके इनबॉक्स में अगर कुछ है तो लेट्स चेक देयर. सपोज दिस, ओके, यहाँ से मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ इस 3 डॉट से, यहाँ से मान लो ब्लॉक फाइनेंशियल डायरेक्टर, राइट, आई एम जस्ट पुटिंग इट इनटू ब्लॉक, ये तो मेरा डायरेक्ट ब्लॉक है, राइट. अब सेम वे आई विल जस्ट गो इन माय गियर बॉक्स, आई विल चेक इन माय सी ऑल सेटिंग्स, आई विल चेक माय फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेसेस एंड आई विल बी एबल टू सी कि मेरे पास ब्लॉक में क्या आया हुआ है, ये वाला चीज फाइनेंशियल डायरेक्टर, राइट. तो अगर मुझे इसको ब्लॉक नहीं करना है तो आई विल जस्ट अनब्लॉक इट. मैंने उस मेल को खोला, साइड के 3 डॉट्स पे क्लिक किया और मैंने वहां पे ब्लॉक डाल दिया, राइट. ओके, लेट्स जस्ट क्विकली गेट बैक टू आवर थिंग्स. एक बार अपनी पीपीटी चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी चीजें हमने लर्न कर ली हैं और कौन सी रह गई. 2-3 चीजें रहती हैं अभी. लेट्स चेक. ट्रांसलेटिंग मैसेजेस वी आर डन, लेबलिंग मैसेजेस वी आर डन, प्रायोरिटाइजिंग व्यू ऑफ इंपॉर्टेंट मेल्स मींस जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टॉप नजेस जो हमने नजेस करे हैं और उसके साथ साथ हमने स्टार्ट करे हैं, दैट इज मेकिंग इट प्रायोरिटाइजिंग मेल, राइट. स्टारिंग जो हमने करी है, हॉवरिंग एक्शंस जो हमने मेल के साथ चेक करे, 4-5 ऑप्शंस हमें आ जाते हैं. आर्काइविंग मेल्स एंड स्नूजिंग मेल विल टेल यू. फिल्टर वी आर डन, मल्टीपल इनबॉक्सेस वी आर डन, नजेस वी आर डन, smart composing of mails we are done. Okay, advanced feature of Gmail is same जो मैंने आपको बोला, grammar आपने on कर लिया, suggestions on कर लिया, spellings on कर लिया, these are advanced feature of Gmail, right. Categorizing mailboxes means जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 मैंने मेल बनाया, LinkedIn का अलग बनाया, GSH का अलग बनाया, Me का अलग बनाया, राइट, वो categorize मैंने किया है मेल बॉक्स को. Sending mail from same account we are done. Mute conversations, this will do. एक्टिवेट, अनडू सेंड वी आर डन. रीडिंग पेड मैंने आपको बता दिया. ओके, ब्लॉकिंग मेल हो गया. अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रह गया टॉगलिंग कॉन्फिडेंशियल मोड. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है. टॉगलिंग विल बी लर्निंग स्नूजिंग and we'll be learning muting and archiving. That's it. Just these 3-4 things, another 2-3 minutes and we are done. So here, what is toggling? Toggling information is when we are doing some composing. आप नीचे देखेंगे आपकी मेल बॉक्स में आपको ये कंपोज में यहाँ पे ये वाले बॉक्सेस में आपको ये ऑप्शंस दिखते हैं, राइट. और ये जो लॉक बना होता है दिस इज टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड. ये क्या शो करता है? ये शो करता है आपने किसी को, अगर आप इसको ऑन करते हैं, राइट, मैं ये मेल सपोज मैं हाय हेलो नॉर्मली भेज रही हूँ किसी को, या मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जिसके पास भी मेरा मैसेज जा रहा है वो 1 वीक के बाद एक्सपायर हो जाए, 1 डे के बाद एक्सपायर हो जाए, राइट, या उस पर्सन को एक SMS कोड मेरे से मांगना पड़े तो वो ओपन हो. देयर आर 2 ऑप्शंस. फर्स्ट इज आई वांट दैट माय मेल शुड गेट एक्सपायर with this because this is something confidential. So it should get expire with the next person within 1 day. There are different options, right? 1 day, 1 week, 1 month, 3 months, 5 years or whatever, right? And you can change for the dates also there. Or you want to require passport, तो आप उसको सेव कर सकते हैं, right? वो वाला मेल ये देखिए जब मैं ऑन कर दिया मैंने 1 डे के लिए, तो यहाँ पे वो मैसेज उसको भी शो होगा पर्सन को कि this message is gonna to get expired on this date, right? Fine, I hope it is clear.
So this is toggling confidential mode, which we are doing, right? Now, if we go for archiving is what? Archiving is like hiding the mails. I really don't want that my all these mails, I don't want my Swiggy mail should be visible to my audience or something like that. नहीं तो सोचेंगे पता नहीं कितना कुछ order करके मंगवाते रहते हैं. I just want, I'll filter the messages like same way. और यहाँ पे ही मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसको आर्काइव कर दूंगा. It will get disappear, right? It will get disappear और मेरे को वो अपने आर्काइविंग की ऑप्शन में it will show me, right? It will be there. Okay, we'll have to again open the gearbox and there we have to check it. This was archiving. मुझे sent अपनी वो मेल है जो कुछ भी हाइड करनी है तो it goes that way. Next is snoozing. Snoozing means अब same way मैंने hovering action open कर रखा है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है snoozing, right? Snoozing को अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो मुझे ये एक अलार्म है मेरी मेल के लिए कि मैं चाहती हूँ मुझे ये मेल कल को फिर दिखे, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है इसको ऑन करने का, इसको चेक करने का, इसका रिप्लाई करने का. आई वॉन्ट दिस मेल शुड डिस्प्ले टू मी अगेन. तो वो मेल मेरी स्नूज हो जाएगी, राइट? फॉर दैट टाइम ऑफ पीरियड, 1 hour, 1 minute, 2 minutes, or 1 day, 1 week. So this way it will go ahead and it will really help me out to go and read it again. I'm again telling you, suppose any of the mail, you snooze it, right? Tomorrow, this weekend, next weekend, or you can select date and time also कि किस डेट को आप चाहते हो उसका अलार्म आपके पास दोबारा आए. तो जब भी आप अपना जीमेल बॉक्स खोलोगे तो वो एक बार आपको अलार्म जरूर, जैसे हमें अलार्म पॉपअप होता है वैसे ही it will snooze. So this also really helps out, right? I hope this is clear. Fine. Is there any other thing which you guys are not clear? You want to have any queries regarding that? I hope we are done. Right? So this was all from my end. I hope I could pass on a little bit, if not much of the information to you guys. एक और चीज मैं आपको, मैं बिकॉज टेक्निकल चीजें मुझे अच्छी लगती हैं एक्सप्लोर करनी, तो आई जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. आई डोंट नो, मे बी सम ऑफ यू माइट बी नोइंग. जस्ट रिसेंटली किसी ने पूछा कि भाई बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे कि मेरी सडनली स्क्रीन इट स्टार्टेड गेटिंग zoomed सो मच. हमारे पास ये जो हमारा ऊपर का बार होता है वहां पे 3 डॉट्स होते हैं, इनको हम नॉर्मली यूज नहीं करते, राइट? दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. इनको हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं. यहाँ पे हमारा जूम है, राइट? इसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्क्रीन माइनस में लेके जानी है, या हम चाहते हैं कि मुझे ज्यादा बड़ा दिखे, तो दैट वे इट विल गो अहेड. तो वो मुझे उस हिसाब से वैसे ही दिखेगी. जूम है या जूम इन है या जूम आउट है, जितना बारीक चाहते हो. ये देखिए, जितना मैं माइनस करती जाऊंगी उतना वो बारीक होता जाएगा, जितना मैं प्लस करती जाऊंगी उतना वो बड़ा होता जाएगा, राइट? सो दिस वे हम अपना स्क्रीन का डिस्प्ले भी वी कैन मैनेज दिस वे. और इसके अलावा एक और चीज, न्यू इनकॉग्निटिव मोड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. न्यू इनकॉग्निटिव मोड विंडो क्या है? यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं. मान लो आपका कुछ पर्सनल है, आप स्कूल में अपना कुछ पीसी यूज कर रहे हैं, वहां पे आपने कुछ समटाइम्स कुछ पर्सनली सर्च करना है, राइट? सो इफ यू जस्ट गो फॉर गूगल हियर, इनकॉग्निटिव मोड में आप जाके गूगल करते हैं, राइट? यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं या एनीथिंग, राइट? जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी आप सर्च करेंगे, वो आपका सर्च बॉक्स में कभी भी कहीं भी किसी को भी डिस्प्ले नहीं होगा, right? It's like you are at home and you want some searches to be done. मेरे जैसा ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन पेपर बना रहा हो तो उसको उस सर्च को हाइड करना चाहता है कि मैंने क्वेश्चंस क्या क्या ढूंढने हैं. समटाइम्स माय चिल्ड्रन आर अराउंड और समथिंग लाइक दैट, अगर मुझे अपने बच्चों के लिए टेस्ट बनाना है, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो वो मेरा सर्च बॉक्स, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, देख लेते हैं गूगल में कहाँ पे क्या है, हिस्ट्री जाके चेक करते हैं हिस्ट्री में क्या है. तो वहां पे दिस इज स्मार्ट ऑप्शन. अगर हम इनकॉग्निटिव मोड में जाते हैं एंड वी गो फॉर इट, देयर वी हैव कम टू नो कि हाँ हम कैसे नेक्स्ट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड. इन द मीनवाइल आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर योर सर्टिफिकेट लिंक विद ऑल ऑफ यू.
Till then, if anybody wants to unmute and share something, you're most welcome to share that. Ma'am, I have a query. Yes, ma'am. How do we use bookmark? Yes, sir. Sorry. Bookmark. Bookmarks. How do we do bookmarks? You want Yes. to know that? Yes. Yes. Sure. ma'am. Sure. I'll just let you know. Just give me a minute, sir. In the meanwhile, I'll just share the certificate link so that the people who just want to go for it, they can just at least fill. Just give me a minute. I'm sharing link here. Fine. I hope you know my name. That's Miss Pooja Ghai. If you have to fill the resource person's name. हाँ जी sir. So bookmarks. Bookmark के लिए we'll just simply go to Google. Bookmark is also a very helpful tool. Normally हम यहाँ पे जाते हैं. Google open किया. Google में suppose मुझे कुछ IELTS का चाहिए. IELTS की best books for preparation. Right. And I feel like कि ये वाली site first any randomly I'm opening कि my this site is very much helpful for me. यहाँ पे जितनी भी information आ रही है बहुत helpful है. I'll just go again. वही मैंने कहा ना जैसे ये वाले 3 dots. These are very beneficial dots. यहाँ पे हम जाएंगे. We'll see here bookmarks. हम यहाँ पे bookmark पे click करेंगे. We'll click there, right? And bookmark this tab. सबसे top पे option. Bookmark this tab. इसको हम ऑप्शन में करेंगे तो वो हमें बताएगा ओके ये वाली ऑप्शन आप यही नेम लिखना चाहते हैं या मैं नेम चेंज करना चाहती हूँ तो मैं अभी इस पे लिखती हूँ IELTS डेमो कि मैंने ये डेमो के लिए शो करा है मैं इसको डेमो का बुकमार्क है तो मैंने लिखा तो वो डन हो गया उसके बाद आई हैव टू क्लिक डन अब अगर उसको देखना कैसे है कि कहाँ गया वो मेरा बुकमार्क I'll just again click on these 3 dots. I'll click there on bookmarks because मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे bookmarks हैं. So it will go at down at bottom. ये देखिए सबसे नीचे. I hope it's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, IELTS demo. It's written here. So these are my whole bookmarks. So this way you can surely bookmark any of Google page. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. So thank you, dear audience. It was lovely to have your presence. I hope all of you must have learned. आपका कुछ ना कुछ takeaway जरूर होगा, ज़्यादा ना सही तो. So thank you so much for joining me and being a grateful part of it. Thank you, Sumedha ma'am. Thank you, Shelja ji. Thank you, Sheetal ji, Meenakshi ji, Vikas sir, Preeti ma'am, Avanti ji, Manju ji, everyone, each one of you. So we will be meeting again with our next Technofest celebration and with our next technical learning, wherein we are going to learn Google Drive. हमने आज Gmail सीखा, हम Drive भी सीखेंगे कि Drive में there are many of the options which generally we do not know to explore. So we'll be learning that shortly in the coming week. Stay tuned with us. Thank you very much. Here we take your leave.